سیالکوٹ میں عام انتخابات کی گہما گہمی عروج پکڑتی جا رہی ہے، مگر دوسری طرف NH74 کے بنیادی مسائل آج بھی جوں کے توں ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ سڑکیں اور نکاسی آب کے لیے سیوریج کا سسٹم ہی ٹھیک نہ ہو سکا۔ وحید احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ سیالکوٹ کا حلقہ NH74 بنیادی مسائل کا گھر بن چکا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رانا محمد شمیم قومی اسمبلی اور ان کے صاحبزادہ رانا عبدالستار جو کہ متعدد بار اس حلقہ سے صوبائی اسمبلی کے ممبر منتخب ہو چکے ہیں، مگر اس حلقہ کی نالیوں کے گندے پانی اور کچرا کنڈی سے شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ سیوریج دا نظام خراب ہو گیا ہے، گندا پانی باہر آندا پیا، اودی وجہ تو وڈے چھوٹے بچے طرح طرح بیماریاں دے مبتلا ہوندے نے پے۔ یہاں پر بارشوں کا پانی تو بہت دور کی بات ہے، یہاں پر نالوں کا پانی بھی آ جاتا ہے، اور یہ یہاں پر گورنمنٹ کا اسکول بھی ہے، بچیوں کو آنے جانے کا دشواری ہے۔ عرصہ دراز سے سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں اور کئی گھنٹے بجلی اور سوئی گیس کا بند رہنا مقبول بن چکا ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے الیکشن آ گئے ہیں، امیدوار ووٹ لینے آ جاتے ہیں، مگر علاقے کے مسائل جوں کے توں ہیں، ہم ووٹ اسی کو دیں گے جو ہمارے مسائل حل کرے گا۔ وحید احمد، سچ ٹی وی، سیالکوٹ۔ ریلوے اسٹیشن خوشاب سے متصل ریلوے ملازمین کوارٹرز مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگے، لاکھوں روپے مالیت کی لکڑی غائب کر دی گئی۔ خوشاب ریلوے اسٹیشن سے متصل ریلوے ملازمین کے رہائشی کوارٹرز مناسب دیکھ بھال نہ ہونے اور محکمانہ غفلت کے سبب بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگے۔ کوارٹرز کی تعمیر میں استعمال ہونے والی قیمتی لکڑی غائب کر دی گئی، جس کی مالیت لاکھوں روپے میں ہے۔ ریلوے ملازمین کے کوارٹرز کی اینٹیں اور دیگر اہم تعمیراتی میٹیریل بھی موجود نہیں۔ اگر رہائشی کوارٹرز پر محکمانہ توجہ نہ دی جاتی تو یہ کھنڈرات میں تبدیل نہ ہوتے اور نہ ملکی اثاثے کو نقصان ہوتا۔ عوامی حلقوں نے نگراں وزیر اعظم سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ مانجھی پور میں سرکاری کالج کی عمارت تعمیر نہ ہو سکی، طلباء و طالبات خوف کے سائے میں پرانی خستہ حال عمارت میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس حوالے سے ماجد علی کھوسا کی اس رپورٹ میں۔ ضلع صحبت پور کی دوسری بڑی تحصیل مانجھی پور میں قائم گورنمنٹ انٹر کالج مانجھی پور کی بلڈنگ کا کام گزشتہ 3 سالوں سے شروع نہ ہو سکا۔ 2020 میں کالج کی نئی بننے والی بلڈنگ کے ٹینڈر کے ذریعے کروڑوں روپے کی خطی رقم جاری ہونے کے باوجود تعمیراتی کام شروع نہ ہو سکا، جو کہ محکمہ بلڈنگز کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ متعدد بار اعلی افسران کے دوروں کے باوجود کالج کا کام شروع نہ ہونے سے کالج کے طلبہ طالبات سمیت کالج سٹاف بھوت بنگلے نما خستہ حال بلڈنگ میں اپنا فریضہ سر انجام دینے پر مجبور ہیں۔ 2-3 دن پہلے یہاں پر ہم پڑھ رہے تھے، کلاسیں ہو رہی تھیں کہ اچانک وہاں پر چھت سے ایک بڑا چھپر گرا۔ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہاں پر کوئی ہمارا ساتھی نہیں بیٹھا ہوا تھا، نہیں تو اس کو جانی نقصان ہو سکتا تھا۔ کالج کے طلباء و طالبات نے سیکرٹری ایجوکیشن کمشنر نصیر آباد ڈویژن سے فوری طور پر کالج کی بلڈنگ کا کام شروع کروانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ وہ اپنی تعلیم آسانی سے حاصل کر سکیں۔ پاک پتن کی ڈھولا بستی اور بے شمار آبادیوں کا واحد گرلز اسکول 4 سال سے ویران پڑا ہے، عملہ تعینات ہی نہ ہو سکا۔ علاقہ مکینوں نے امیدیں انتخابی امیدواروں سے باندھ لی۔ مزید بتا رہے ہیں بیورو چیف نذیر احمد کھرر اپنی اس رپورٹ میں۔ پاک پتن شریف کے دریائی علاقوں میں وید بچیوں کا سکول ڈھولا بستی 4 سال سے ویراں پڑا ہے، کوئی ٹیچر ہی نہیں ہے۔ بلاڑا حسن کا، بلاڑا لکھوں کا، بستی تیلیاں، بستی محمد حسین کھرل، بستی نور کوٹ، بستی سلدیرہ سمیت بے شمار آبادیوں کی بچیاں آج کے دور میں بھی زیور تعلیم سے محروم ہیں۔ پاک پتن شریف میں ایجوکیشن کے محکمے کی کارکردگی صرف کاغذوں تک محیط، الیکشن سر پر ہے۔ علاقہ مکین نے اپنی امیدیں امیدواروں سے باندھ لی، کوئی تو مسیحا ہے جو اس پسماندہ ترین علاقے کی بچیوں کا مستقبل بچائے۔ جی سارے سکول 4 سال تو کوئی ٹیچر نہیں آ رہی ہے، سکول دے وچ مال بدے کھڑے کوئی اتنے تعلیم دا نظام کوئی نہیں ہے، بالکل جڑا بچیاں دا سکول ہے بالکل غیر آباد بھی ہے تے 4 سال ہو گیا کوئی اتنے آ ہی نہیں رہی ہے۔ اس دفعہ جیڑی سانو ٹیچر اتنے لیا دے سی جڑا سارے بچیاں نوں تعلیم دے سی اسی اس نوں ووٹ دینا۔ میرے ٹیچر 4 سال سے نہیں آ رہے، ہم چاہتے ہیں ہمارے اسکول میں نیو ٹیچر آئے اور ہم بھی کچھ پڑھ لکھ کر بن جائے۔ بار بار علاقہ مکی کی درخواست کے باوجود CO ایجوکیشن پاک پتن نے ان کی داد رسی نہیں کی۔ سکول کے دروازے پر جانور باندھے ہوئے ہیں اور دیواروں کے ساتھ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر اور دروازوں پر لگے تالے محکمہ ایجوکیشن پاک پتن کے منہ چڑھا رہے ہیں۔ کوئی تو ہو اس کا نوٹس لے اور یہاں پر سرکاری ٹیچر بھیجیں تاکہ یہاں کی بچیاں بھی پڑھ لکھ کر ملک و قوم کی خدمت کر سکیں۔ کیمرہ مین راشد ہنجرا کے ساتھ نذیر احمد کھرل، بیورو چیف سچ ٹی وی، پاک پتن شریف۔ حیدرآباد کے شہر ٹنڈو جام میں گیس کی لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر سے پریشان خواتین سراپا احتجاج بن گئی۔ ٹنڈو جام سے رپورٹ کر رہے ہیں اورنگزیب بھٹو۔
हैदराबाद के शहर टनोजाम व गिरदोनवा के इलाकों में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग और कम प्रेशर की वजह से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। 18 से 20 घंटों तक गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर का होना रोज का मामूल बन चुका है। सुबह का नाश्ता बनाना हो या 2 वक्त के खाने की तैयारी सब महाल है। गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर के बायस परेशान हाल खवातीन ने 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में वोट को भी गैस की फराहमी से मशरूत करके एहतजाजन वोट न देने का ऐलान कर दिया है। जी मसला हो जाता है, खाना लेट हो जाता है, नमाज के लिए लेट हो जाते हैं, बड़े बूढ़े जो जाते हैं मस्जिद, फिर सिलेंडर यूज़ करते हैं। अब पता है आपको कितना महंगा वो सिलेंडर होता है, और सुबह आती है फिर चली जाती है गैस। बिना नाश्ते करे जाते हैं बच्चे भी, और जो आदमी है जो ड्यूटी जाते हैं, काम पे जाते हैं, वो भी जो बिना नाश्ते जाते हैं। ये बता क्या करें? अब आप ही इस बात में मसला हल तो आप ही कर सकते हैं ना। वोट तो जीते देंगे, जीत हमारा मसला हल होगा। दिन व रात के औकात में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग और कम प्रेशर की वजह से शहरी भारी कीमत पर एलपीजी सिलेंडर और लकड़ियों का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। इंतजामिया की गफलत और लापरवाही सिंध के शहर फैज़गंज की टाउन कमेटी पक्का चांग के शहरी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। इमदाद चांग की रिपोर्ट देखिए। फैज़गंज की टाउन कमेटी पक्का चांग के अमले की जानिब से गुज़श्ता 15 सालों से पक्का चांग के शहरों को सोलर न दे सका। शहर में न सफाई हो सकी, न गटरों की मरम्मत की गई। टाउन अमले की नाली के बाद गटरों के ढक्कन भी चोरी हो गए। टाउन की बजट से नाकारा गाड़ियों की मद में डीजल पेट्रोल के बिल बनाकर खुली करप्शन का भी इंकशाफ हुआ है। शहरों का कहना है कि 15 सालों से टाउन में कोई तरक्याती काम नहीं करवाए गए, हम वोट किसी को भी नहीं देंगे। इलेक्शन के लिए अभी तो जाहिर हुए हैं, 15 साल पहले ये इधर से इलेक्ट हुए, लेट होके इस्लामाबाद चले जाते हैं, कराची चले जाते हैं। शहर के मसले इस तरह ही पड़े हैं। ये ड्रेनेज सिस्टम है, ये तबाह है, वाटर सप्लाई पानी है ही नहीं हमारे पास। नालियां ठीक हैं, पुल टूटे हुए हैं, गटर के ढक्कन खुले हुए हैं, हर जगह पे कचरा गंद पड़ा हुआ है। लिहाजा हम ये इल्तिजा करते हैं, अगर यही हालात रहे तो हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। चांग के शहरों ने शहर में तरक्याती काम और सफाई न होने पर बरहमी का इजहार करते हुए वोट न करने से इनकार कर दिया। किसानों की मुश्किलात हल न हुई। चोनिया, छांगा मांगा, इलाहाबाद और कंगनपुर में खाद माफिया की मनमानियां उरूज पर पहुंच गई। गिरां फरोश काश्तकारों को दोनों हाथों से लूटने लगे। किसान खाद के हसूल के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। खाद कंट्रोल रेट पर मिलना नामुमकिन हो गया। फ़हीम लतीफ़ की रिपोर्ट देखिए। किसानों की मुश्किलात कम होने के बजाय बढ़ने लगी। खाद का बुहरान संगीन हो गया। खाद डीलर्स किसानों को दोनों हाथों से लूटने लगे। चूनिया, छांगा मांगा, इलाहाबाद और कंगनपुर में यूरिया खाद कंट्रोल रेट पर मिलना नामुमकिन हो गया। परेशान हाल किसान ब्लैक में यूरिया खाद खरीदने पर मजबूर हो गए, जबकि जिले और तहसील इंतजामिया किसानों से ताउन नहीं कर रही। जिम्मेदार बहुत परेशान है और हुकूमत के मुकर्ररा करदा रेटों पर भी खाद नहीं मिल रही और लोग ब्लैक खाद खरीदने में मजबूरन खरीद रहे हैं, लेकिन वो भी मिन्नतें करके डीलरों की वो खरीद रहे हैं। वापडा की ओवर बिलिंग, जालिमाना टैक्सेस, घरेलू और ज़राई ट्यूब वेल्स के मीटरों की अदम दस्तियाबी, खाद की ब्लैक मार्केटिंग और रोज बरोज कीमतों में इजाफे ने किसानों को अजियत में मुब्तला कर रखा है। किसान इत्तेहाद कसूर के रहनुमाओं ने निगरान वज़ीर आला पंजाब से अपील की कि खाद समेत तमाम अशिया ज़रूरिया की फराहमी यकीनी बनाई जाए ताकि मुश्किलात में कमी आ सके। चौक सरवर शहीद में महकमा हाईवे मुजफ्फरगढ़ की नाहली और ठेकेदार की मुबैना करप्शन। 1 अरब 29 करोड़ से बनने वाले रंगपुर रोड और साइडों पर मौजूद सीवरेज नाले की तामीर में करप्शन का इंकशाफ हुआ है। सीवरेज नाला मुकम्मल होने से पहले ही टूट फूट का शिकार हो गया। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं चौधरी साजिद अली अपनी इस रिपोर्ट में। 1 अरब 39 करोड़ रुपए की खतीर लागत से बनने वाले 32 किलोमीटर रंगपुर चौक सरवर शहीद रोड के तराफ में मौजूद सेवरेज नाले की तामीर में ठेकेदार की जानब से मंजूर शुदा तमीराती मटीरियल इस्तेमाल न करने का इंकशाफ हुआ है। सेवरेज नाला बनने से पहले ही टूट फूट का शिकार हो गया है। खाला बनने पेन चौक मुंडे दा बिल्कुल नाकस माले तले जेड़े वार हैं उनदे उत्ते वार हैं बिल्कुल खाला जिवें टेढ़ा उवें टेढ़े दे उत्ते वार लाई जाए। अगले दिन मिस्त्री ने असां कहा भी पट के इन्हूं दोबारा ला, उन्हें कोई रद्दो बदल नहीं की। वो कहंदा साडा ठेकेदार कहंदा जिवें खाला है उवें बनाई रखो तुसीं। मुतअद्दिद बार निशानदही के बावजूद इंतजामिया ने तमीरात को चेक करना गवारा नहीं किया। समाजी हलकों ने निगरान वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है तमीरात का जायजा लेकर नाकस मटीरियल के इस्तेमाल पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज़, चौक सरवर शहीद।
قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد علی نقوی سے गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला हाजी गुलबर खान ने सूबाई वज़रा के हमरा मुलाकात की। इस दौरान गिलगित बल्तिस्तान के अवामी मसाइल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के हमरा सूबाई वज़रा में हाजी मुश्ताक, राजा नासिर अली खान और हाजी हमीद शामिल थे। मुलाकात में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने गंदम सब्सिडी के हवाले से ब्रीफिंग दी और मुश्किलात के हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर व गौस किया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने इत्तेहाद उम्मत के लिए कायद मिल्लत जाफरिया अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी के बसीरत व किरदार को सराहा और इनकी काविशों को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला और सूबाई वज़रा ने गिलगित बल्तिस्तान के दीगर मसाइल बिलखुसूस अमन व अमान के मामलात पर भी ब्रीफिंग दी और GB में क़याम अमन के लिए इक़दाम उठाने के लिए बाहमी ताउन पर इत्तेफाक किया। इस मौके पर इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल अल्लामा डॉक्टर शब्बीर हसन मीसमी, मरकज़ी डेप्यूटी सेक्रेटरी मोहम्मद अली कायद और मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात जाहिद अली अखवंजादा भी मौजूद थे। टस्का में महंगाई का तूफान थम न सका। मुर्गी के गोश्त की कीमतों ने ऊंची उड़ान भर ली। हुकूमत भी महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो गई। गरीब आवाम के लिए परेशानी ही परेशानी है। मुजफ्फर अली चौहान की रिपोर्ट देखिए। बीफ और मटन शहरियों की पहुंच से दूर हुआ तो लोगों ने चिकन की दुकानों का रुख कर लिया, लेकिन महंगाई का वार तो चिकन पर भी चल गया। जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया महंगी हुई, वहीं पर मुर्गी का गोश्त भी शहरियों की पहुंच से दूर हो गया। मेरी गुजारिश है कि ये गोश्त 600 रुपए किलो हम लोग नहीं लेके खा सकते। आसमान से बातें कर रहा है गोश्त भी। हुकूमत के अपील है, जो हम लोग माड़े लोग कैसे हम अपना घर चलाएं। दुकानदारों का कहना है कि मुर्गी की फीड में 10 से 15% का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से हम महंगे दामों गोश्त फरोख्त करने पर मजबूर हैं। गोश्त महंगा होने नाल साडा कारोबार ठप हो गया है। पिछले हफ्ते रेट 500 सा जे आज की 650 है। 650 जेड़ा कस्टमर आंदा रेट पुछता है चला जाता, साडा कारोबार बिल्कुल मजीद ठप हो गया। गरीब की पहुंच में एक मुर्गी का गोश्त ही था, पर वो भी महंगाई की नजर हो गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बहावल नगर में सब्जियों के रेट आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। प्राइस कंट्रोल कमेटियां अमलन गैर फाल और जिला इंतजामिया महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। गरीब के लिए 2 वक्त का खाना भी इम्तिहान बन गया। बहावल नगर से रिपोर्ट करेंगे राजा कोकब इफ्तिखार। दीगर अशियाए ज़रूरिया तो गरीब आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर थी ही, मगर अब जमीन पर उगने वाली सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए हैं। अशियाए खुर्दनोश के बाद अब सब्जियों की मुसलसल बढ़ती हुई कीमतों ने गरीब और दिहाड़ीदार तबके के लिए अपना और अपने बच्चों का पेट पालना मुश्किल बना दिया है। बहावल नगर शहर और गिरदोनवा में शिमला मिर्च फी किलो 320 रुपए, मटर 280 रुपए फी किलो के हिसाब से, जबकि हर खाने की बुनियादी जरूरत टमाटर 180 रुपए और प्याज 250 रुपए फी किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह अदरक और लहसुन फी किलो 600 रुपए से कम में दस्तयाब नहीं है। इसके साथ साथ दीगर सब्जियों की कीमतों में भी खातर ख्वा इजाफा हो चुका है। अभी मैंने सब्जी का रेट पूछा है भाई साहब से, और वो मैंने प्याज का पूछा रेट, वो प्याज 250 रुपए किलो। गाजर पूछा है, गाजर 80-90 रुपए। देखें एक बंदा है जो 1000 रुपए रोजाना का कमाता है, वो क्या करेगा एक बंदा है। मौजूदा महंगाई के जारी तूफान ने गरीब आदमी की जिंदगी अजीरन बना दी है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज, बहावल नगर। गरीब आवाम महंगाई से परेशान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने के समरात गरीब तक न पहुँच सके। रिपोर्ट करेंगे राना इकबाल राजपूत। डॉलर और पेट्रोलियम मसनूआत के सस्ता होने के बावजूद गरीब आवाम को कोई रिलीफ ना मिल सका, बल्कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बिजली बहुत महंगी हो चुकी है। अशाए खुर्दोनोश, आटा, चीनी, दालें, प्याज, आलू, सब्जियां, गोश्त, मिठाइयाँ, बेकरी का सामान वगैरह के रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और गरीब अफराद की कुव्वत खरीद से बाहर होते जा रहे हैं। एक न एक माफिया जड़ा ना जी, वो साढ़े सिर ते सवार है। कदी जनाब मुर्गा माफिया आ वेंदा तो 300 तो 500 ते पड़ वेंदा तो 600 तो। कदी प्याज माफी आ वेंदा, वो जनाब 20 रुपए तो लैके तो ना मतलब 200 रुपए किलो प्याज हो वेंदे। कदी जनाब बेकरी माफी आ वेंदा, वो जनाब जिहड़ी चीज़ 200 रुपए दी हो 400 रुपए दी हो वेंदी। कदी चीनी माफी आ वेंदा। महंगाई का इस दौर में हमें कसूरवार ठहराते हैं इंतज़ामिया, जबकि बड़े स्टाकिया और मिल मालकान ने महंगाई की है, उधर कोई पूछता नहीं है। ताजर हजरात का कहना है कि हम छोटे ताजर हैं और हुकूमत का सारा जोर छोटे ताजरों पर चलता है, जबकि बड़े बड़े जखीरा अंदोज फैक्ट्री मालकान महंगाई का असल सबब हैं। जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया है। हुकूमत महंगाई के खात्मे के लिए ठोस मनसूबाबंदी करे। महंगाई की वजह से गरीब लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, जबकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नॉन लग्जरी और लग्जरी के चक्रों में पड़े जाते हैं। साहिवाल के शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल चौधरी मोहम्मद नवाज सलियारिया से अपील की है
कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल करके महंगाई के मुर्तकिब अफराद के साथ आहनी हाथों से निपटा जाए। कैमरामैन टीम के साथ राना इकबाल राजपूत, साइट टीवी, शाहीवाल, जिला सरगोदा। आटे और प्याज के नखरे फिर बढ़ गए। बलूचिस्तान में आटे की कीमतों में होश रुबा इजाफा। फ्लोर मिल्स मालिकान ने फी किलो आटे की कीमतों में 5 रुपए कमी का मुतालबा कर दिया है। बलूचिस्तान के बासियों को फिर 3 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। आटे के दाम फिर बढ़ गए। 20 किलो आटे का थैला 2,920 रुपए, जबकि 50 किलो आटे का थैला 7,250 रुपए का हो गया। 2 रोज के दौरान फी किलो आटे की कीमत में 5 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटे की कीमत 140 रुपए कर दी, जिसके बाद 1 किलो आटे का थैला 2920, जबकि 50 किलो आटे का थैला 7,250 रुपए का हो गया। दूसरी जाने प्याज की कीमतें भी नीचे न आ सकी। गुज़श्ता हफ्ते प्याज की कम अज़ कम बरामदी कीमत $750 से बढ़कर $1,200 फी टन होने के बावजूद मकामी मार्केट में प्याज की कीमतें कम न हो सकीं। शहरियों को अब भी प्याज 220 से 240 रुपए तक फी किलो दस्तयाब हैं। तरनौल में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से शहरियों को अशिया खुरनोश में सब्सिडी देने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स का इफ्तिताह कर दिया गया। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हाफिज शेर अफजल। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तरनौल कनवई इलाका सगजानी में महंगाई के दौर में मुख्तलिफ अशियाए खुर्दनोश पर सब्सिडी देने के लिए सगजानी बाजार में यूटिलिटी स्टोर का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी MD मोहम्मद अली आमिर थे। इस मौके पर उनके हमरा सेक्रेटरी गुलाम मुर्तजा, जनरल मैनेजर सरदार मोहम्मद खान, एरिया मैनेजर मलक इफ्तिखार भी मौजूद थे। यूटिलिटी स्टोर की इफ्तिताही तकरीब होते ही शहरियों की अशियाए खुर्दनोश की खरीदारी के लिए लंबी लाइनें लग गईं। शहरियों ने हुकूमत पाकिस्तान के इस्तक़दाम को खूब सराहा। तो यूटिलिटी स्टोर पे अशिया खुर्दनोश पे जो है वो सब्सिडी फराम की गई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से। ये गवर्नमेंट का ऐसा इक़दाम है, हम गवर्नमेंट के मशकूर है कि उन्होंने ये संगयानी के इलाके में आज यूटिलिटी स्टोर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर असिस्टेंट सेल मैनेजर खालिक नूर ने कहा कि महंगाई के इस दौर में हम गरीब और मुस्तहिक आवाम के लिए आटा, खेत, चावल, चीनी व दीगर अशिया पर सब्सिडी दे रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर पे काफ़ी कम रेट पे जो है ना चीज़ें भी मिल रहा है और अच्छे रेट पे मिलते हैं। और दूसरी बात यह कि बेनज़ीरे वाला प्रोग्राम चलता है। आटा 648 का है, चीनी 109 रुपये किलो और घी 365 रुपये हम दे रहे हैं। मजीद उन्होंने कहा कि आवाम यूटिलिटी स्टोर से सस्ती और मयारी अशिया खरीद सकते हैं। कैमरामैन टीम के साथ हाफिज शेर अफजल, सच न्यूज़, तरनौल। टोबा टैक्सिंग में ख्वाजा सराओं और ख़वातीन के लिए खुसूसी इक़दाम तहफ़्फ़ुज़ सेंटर ने 1 साल की कारकर्दगी रिपोर्ट शाया कर दी। गुज़श्ता साल के दौरान तहफ़्फ़ुज़ सेंटर ने ख्वाजा सराओं और ख़वातीन को बाइज़्ज़त रोज़गार समेत सैकड़ों मुक़दमात में मदद की। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट देखिए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेसिंग की सरबराही में पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ ने गुज़िश्ता साल के दौरान ट्रांसजेंडर मज़दूर बच्चों, जिनसी तशद्दुद का शिकार ख़वातीन, बच्चों, ज़रूरतमंद अफराद की फलाह बहबूद के साथ साथ उनकी तालीम, सेहत, नफ्सियाती और कानूनी मुआवनत फराहम की। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में ख्वाजा सराओं, ख़ुसूसी अफराद, ख़वातीन की फौरी दादरसी, कानूनी रहनुमाई, जुर्म की इत्तला और बेहतरीन रोज़गार की फराहमी जैसी सहूलियात शामिल हैं। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ सेंटर ने गुज़िश्ता साल के दौरान 200 से ज़ायद बेसहारा ख़वातीन ट्रांसजेंडर की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्ट्रेशन करवाई। मुआशरे के पिछड़े हुए अफराद को सहारा देने के लिए 8 मुख्तलिफ तंजीमों और अदारों के साथ MOU साइन किया। 1 साल के दौरान 100 से ज़ायद बेसहारा ख़वातीन के बच्चों को मुख्तलिफ स्कूलों में मुफ्त तालीम के लिए दाखिल करवाया गया। 7 गुमशुदा बच्चों को ढूंढकर उनके वालिदैन के हवाले किया गया। 1610 लोगों को यहाँ पे फैसिलिटेट किया, जिसमें 200 के करीब ख़वातीन और ट्रांसजेंडर्स हैं जिनकी हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवाई। 8 मजदूर अफरादों को व्हील चेयर्स हमने प्रोवाइड की। 6 सिलाई मशीनें दी मुख्तलिफ जो औरतें थी उनको, ताकि वो भी अच्छे तरीके से अपना रोजगार चला सकें। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ सेंटर ने न सिर्फ ख़वातीन के मुकदमात का अंदराज किया बल्कि सैकड़ों मामूली मामलात को बाहमी सलाह मशवरे से हल करवाया। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात मिलने के बाद इलेक्शन मुहिम में तेजी आ गई है। औस्ता मोहम्मद से देखिए वारिस दिनारी की रिपोर्ट। बलूचिस्तान असम्बली का हल्का PB 17 उस्ता मोहम्मद गंदाखा पर मुश्तमिल है। इस वक्त 3 ख़वातीन समेत 25 उम्मीदवार मैदान में, जिनमें 10 मुख्तलिफ पार्टियों के टिकट होल्डर हैं, जबकि 15 आज़ाद हैसियतें हिस्सा ले रहे हैं। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलाट होने के बाद इंतखाबी सरगर्मी में तेजी आ गई। शहर में मुख्तलिफ पार्टी परचमों की बहार आ गई है। कार्नर मीटिंग में तेजी के साथ कल के हलीफ आज एक दूसरे के हरीफ बनते नजर आने लगे। रूठों को मनाने का सिलसिला भी तेजी के साथ जारी है। हर उम्मीदवार
उम्मीदवार यकीनी कामयाबी के दावेदार भी है। यूं तो फहरिस्त में 25 उम्मीदवार हैं, जिनमें बेशतर कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर भी हैं। असल मुकाबला 3 उम्मीदवारों के दरमियान मुतवक्को है। ताहम पोलिंग में अभी काफी दिन है। यहाँ पर ऐसे बाजीगरों की कमी नहीं जो किसी भी वक्त बाजी पलट सकते हैं, इसलिए अभी से कुछ कहना कबल वक्त होगा। कैमरामैन मोहम्मद अली बलोच के साथ वारिद दिनारी, सच न्यूज़, उस्ता मोहम्मद। सक्खर प्रेस क्लब में सिंध जर्नलिस्ट कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें पूरे पाकिस्तान से सहाफ़ियों ने शिरकत की और सहाफ़ियों के हुकूक और जान मोहम्मद के कातिलों को गिरफ्तार करने के मुतालबात किए गए। सक्खर से जाहिद शेख की रिपोर्ट देखिए। शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिलों को 152 दिन गुजर जाने के बाद भी गिरफ्तार न किया जा सका। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सिंध एक्शन कमेटी की जानिब से सक्खर प्रेस क्लब में सिंध जर्नलिस्ट कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें पूरे पाकिस्तान से सहाफ़ियों समेत सियासी, समाजी, कारोबारी और वकला बिरादरी ने शिरकत की। सिंध जर्नलिस्ट कन्वेंशन से PFUJ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी, मरकजी फाइनेंस सेक्रेटरी लाला असद पठान, सिंध एक्शन कमेटी के चेयरमैन मजहर अब्बास, जबकि मरकजी सदर PFUJ के अफजल भट्ट ने लंदन से बराह रास्त वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। हमारा फैसला हुआ था सिंध एक्शन कमेटी में कि हमने अगर ये जान मोहम्मद शहीद के कातिल गिरफ्तार ना हुए तो 13 ये इसी जनवरी में हम जो है ना वो पूरा एक कन्वेंशन करेंगे। इंशाल्लाह आइंदा अलहमद का ऐलान भी करेंगे। अपने बड़े जर्नलिस्ट का सक्खर के बीच शहर में एक मर्डर हुआ है और वो कातिल भी नामिनेटेड हैं FIR में, और उन्होंने खुद अपना एतराफ़ किया है कि हमने ही मर्डर किया है। मजीद इन्होंने कहा कि सहाफ़ियों को इनके हुकूक दिए जाएं। अदालती हुक्म के बावजूद सिंध की निगरान हुकूमत और सिंध पुलिस कोई संजीदा कदम नहीं उठा रही। पाकिस्तान भर से सिंध जर्नलिस्ट कन्वेंशन में आए तमाम सहाफ़ियों का सिर्फ एक ही मुतालबा है, शहीद जान मोहम्मद के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। कैमरामैन अशफाक खोसो के साथ जाहिद शेख, सच न्यूज़, सक्खर। मुल्क में रगों में खून जमा देने वाली ठंड का क़याम तवील होने लगा। हर सू फैली धुंध ने तमाम मंजर धुंधला दिए। मैदानी इलाकों में सूरज के निकलने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। हद निगाह सिफर होने की वजह से मोटरवेज़ को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। मुल्क भर में शदीद सर्दी ने डेरे डाल रखे हैं। बढ़ती ठंड के बायस मामूलात जिंदगी मुतासर हो रहे हैं। हर सू फैली धुंध ने सूरज की मुंह दिखाई की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी हैं, जिसके बायस सर्दी को मजीद तकवीत मिल रही है। कड़ाके की सर्दी से शहरी ठिठरने लगे। कराची तक खैबर सर्द हवाओं का राज है, जबकि बर्फबारी से बालाई इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में है। धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम होने से मोटरवेज भी मुख्तलिफ मकामात पर बंद रही। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक M1 पेशावर से बुरहान, M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 M4 धुंध की वजह से बंद रही। M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक लाहौर सियालकोट मोटरवे भी धुंध की वजह से बंद रही। मोटरवे M14 खड़प्पा ता ईसा खेल, सवात एक्सप्रेसवे कर्नल शेर खान से इस्माइला तक धुंध की वजह से बंद किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शुमाली इलाकों में शदीद सर्द और मतला जुज़वी अबरालूद रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध छाई रहेगी। माहौलियाती मसाइल के बढ़ते असबाब और तवील अरसे से बारिशें न होने के बायस आज़ाद कश्मीर में फ़िज़ाई आलूदगी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ आज़ाद कश्मीर तकीयुल हसन। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में दिन ब दिन पारा गिरने के साथ कई माह से बारिश न होना खुश सर्दी में इजाफे का मौजब बन रहा है। सर्द मौसम और खुश्की में खांसी, दमे और जल्द के अमराज समेत दीगर मौसमी बीमारियां भी आम हो रही हैं। हुकूमती अदम तवज्जही और इंतजामी इदारों की कमजोर गिरफ्त माहौलियाती मसाइल का मौजब बनने वाले अवामिल में इजाफे के बायस फिजाई आलूदगी भी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात आज़ाद कश्मीर की जानिब से जारी करदा आदादो शुमार के मुताबिक दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 258 तक बढ़ चुका है, जो कि आइंदा कुछ रोज तक बढ़ते हुए इंतहाई खतरनाक सूरत इख्तियार कर जाएगा। कैमरा टीम के साथ तकीयुल हसन, सच न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। गुड़ पंजाब की सकाफत का अहम हिस्सा है। कमालिया में क्रशिंग सीजन में काश्तकार गुड़ बनाने में मसरूफ हैं। निहायत लजीज और खुश्क जायका देसी गुड़ छोटे बड़े सब की यकसां पसंद है। असद राजपूत की रिपोर्ट देखिए। कमालिया में सर्दियों के सीज़न में 4 महीने तक काश्तकार गुड़ की तैयारी में मसरूफ़ हो जाते हैं। गुड़ पंजाब की सकाफत का एक अहम हिस्सा है। इसकी तैयारी में सबसे पहले गन्ना बेलने में डालकर उसका रस निकाला जाता है और फिर बड़े कड़ाहे में गर्म करके सफाई की जाती है और पत तैयार की जाती है। इसके तैयार होने के बाद सुखलाई, रंग काट, मीठा सोडा डालकर खूब पकाया जाता है। जब पककर चाशनी तैयार हो जाती है तो उसके बाद छोटे छोटे पीस बनाकर खुश्क करने के लिए रख दिया जाता है। साढ़े पाकिस्तान का माशाल्लाह शोभा भी है तो इस करके बना रहे हैं। तो शुगर मिला तो नहीं, चीनी सही नहीं लभदी, बाकी शुगर होंदी है, सब कुछ होंदा है।
اس करके ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਆਪ ਖਾਈਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਖਵਾਈਦਾ ਜੀ। सर्दियों की सौगात है, हमारे इलाके की पहचान है और पंजाब की पहचान है और पंजाब की सकाफत है। हम इसको बहुत लाइक करते हैं और ये दूसरी चीनी की तरह जो है ना ब्राउन, इसको शुगर बोला जाता है और सेहत के लिए बहुत अच्छा है। काश्तकारों का कहना है कि गुड़ का इस्तेमाल सेहत के लिए बेहतरीन है। इसका इस्तेमाल से हाजमा दुरुस्त होता है और बीमारियां खत्म हो जाती हैं, जबकि काश्तकार अपनी मर्जी से गुड़ बनाकर मौके पर ही मार्केट में फरोख्त कर देते हैं। असद राजपूत, सच न्यूज़ टीवी, कमालिया। खूबसूरत रंग बिरंगे फूल तो बाहर में ही खिलते हैं, लेकिन कुछ फूल ऐसे भी होते हैं जो जनवरी के सर्द मौसम में भी खिलते हैं। वाह कैंट में रंगारंग फूलों की बहार आ गई। मुख्तलिफ रंग के फूल सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गए। फूलों की खुशबू से फिजा मुअत्तर हो गई। वाह कैंट से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल सबूर। बाहर के मौसम में हर तरफ फूल खिल जाते हैं, लेकिन खज़ां और सर्दी के सख्त मौसम में भी कुछ फूल खिलते हैं। नर्सरियों के मालिक का कहना है कि सर्द मौसम के फूल देखने से तल्लुक़ रखते हैं। जनवरी के महीने में मुख्तलिफ अक़साम के फूल हमारी नर्सरियों पर मिलते हैं। लोगों की बड़ी तादाद फूल खरीदने के लिए नर्सरियों का रुख करती है। मैं नर्सरी का मालिक हूँ। इस वक्त हमारे नर्सरी में आपको 5-6 किस्म के फूल मिलेंगे। जनवरी में और फूल कोई नहीं होते। हमारे पास आपको मिलेगा जेरेनियम, रेनकुलस, गाजीनिया, साइक्लामेन और प्राइमूला। फूल खरीदने वाले लोगों का कहना है मुख्तलिफ अक़साम के हरे भरे फूल देखने से बहुत अच्छे लगते हैं। फूलों से जहाँ फ़ज़ा मुअत्तर होती है, वहीं फूल देखने से भी खूबसूरत नज़र आते हैं। फूल जहाँ भी हों, माहौल की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। रवां साल बारिश न होने से फूलों की पैदावार में नुमाया कमी हुई है। कैमरा टीम के साथ अब्दुल सबूर, सच न्यूज़, वाह कैंट। MSDHQ चकवाल ने DHQ हॉस्पिटल के कॉन्फ्रेंस रूम में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान साल 2023 की कारकर्दगी से आगाह किया। मजीद बता रहे हैं चकवाल से ब्यूरो चीफ राजा साकिब अब्बास। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल के कॉन्फ्रेंस रूम में MSDHQ चकवाल डॉक्टर अंजुम कदीर और मीडिया कोऑर्डिनेटर डॉक्टर हलीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सहाफ़ियों को साल 2023 की सालाना कारकर्दगी के बारे में बताया कि साल 2023 में OPD और इमरजेंसी में 9,35,520 मरीज़ों का चेकअप किया गया। इसी तरह 3,57,661 मरीज़ों के लेबॉरेटरी टेस्ट किए गए, जबकि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में हज़ारों मरीज़ों का इलाज और टेस्ट किए गए। इसी तरह 1,266 मरीज़ों की मेजर सर्जरीज की गई। उन्होंने बताया कि पहले DHQ 210 बेड्स पर मुश्तमिल था, जिसको बढ़ाकर 230 बेडेड कर दिया गया है और DHQ के हॉस्पिटल में तमाम डिपार्टमेंट में डॉक्टर तैनात हैं और ये हॉस्पिटल कम वसाइल के बावजूद आवाम को इलाज मुआवजे की सहूलत मुयसर किए हुए है और यहाँ पर आने वाले मरीज़ों का इलाज भी फ्री किया जाता है और उन्हें फ्री अद्वियात भी मुयसर की जाती हैं। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। लोधरा में अलखिदमत फाउंडेशन माजूर अफराद की खिदमत करने में सबसे आगे। लोधरा में खुसूसी बच्चों में 50 व्हील चेयर्स तकसीम की गई। नदीम पीरजादा की रिपोर्ट देखिए। लोधरा में अलखिदमत फाउंडेशन की जानब से माजूर अफराद में 50 व्हील चेयर तकसीम करने के लिए मकामी होटल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। जिलाई सदर असगर शाहीन एडवोकेट ने माजूर अफराद में व्हील चेयर तकसीम की। खिदमत फाउंडेशन जिला लोधरा की तरफ से मैं मोहम्मद असगर शाहीन सदर और मेरी टीम 50 व्हील चेयर्स माजूर अफराद में तकसीम कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि एक फलाही रियासत में माजूर अफराद की देखभाल और उनकी ज़रूरियात पूरी करना उनकी ज़िम्मेदारी है। अलखिदमत वालों ने मुझे व्हील चेयर दिए, इनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा। अब मैं इस पे स्कूल पढ़ने जाया करूँगा। अलखिदमत फाउंडेशन की तरफ से सजाई गई व्हील चेयर तकरीब पुरसकून तरीके से सर अंजाम पाई। शहरियों ने अलखिदमत फाउंडेशन की वर्क को खूब सराहा। कैमरामैन मुजम्मिल उजागर के साथ नदीम पीरजादा, सच न्यूज़, लोधरा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मियांवाली में जदीद थैलेसीमिया लैब का क़याम अमल में आ गया। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर थैलेसीमिया के मरीज बच्चे ने डिप्टी कमिश्नर को गुलदस्ता पेश किया। डिप्टी कमिश्नर ने थैलेसीमिया लैब में मौजूद जदीद मशीनरी का मुआयना किया और वार्ड में दाखिल बच्चों की इयादत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था हुकूमत पंजाब सेहत के शोबे की बहाली के लिए खुसूसी इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी इंसान की जान बचाने के लिए खून का अतिया देना सदका जारिया है। इस मौके पर MSDHQ अस्पताल डॉक्टर अमीर अहमद खान ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। कहा कि पंजाब भर में DHQ लेवल पर ये जदीद तरीन लैब है जहाँ थैलेसीमिया के मरीज़ को जदीद तरीन सहूलियात मुयसर की जाती हैं, जिसका आवाम को भरपूर फ़ायदा होता है। प्लाज्मा और खून को स्टोर करने की सहूलत भी मुयसर होती है, इसलिए मरीज़ यहाँ का रुख करते हैं। हरिपुर का SMT थैलेसीमिया केयर एंड प्रोटेक्शन सेंटर अपनी खिदमत में सबसे आगे। थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों के ख़ानदानों में लाखों रुपए की मालियत का राशन, कपड़े और अद्वियात तकसीम कर दी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं नईमुल्ला खान।
हरिपुर SMT थैलीसीमिया केयर एंड प्रोटेक्शन सेंटर अपनी खिदमात में पेश SMT की जानब से थैलीसीमिया मेजर में मुब्तला बच्चों को खानदान में लाखों रुपए की मालियत का राशन, कपड़े और अद्वियात तकसीम कर दी गई। महंगाई के इस दौर में जहां एक सफेद पोश शख्स को 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गई है, वहीं पर थैलीसीमिया मेजर जैसी खतरनाक बीमारियों में मुब्तला बच्चों के लिए जीना भी 2 बार हो गया है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए SMT की जानब से थैलीसीमिया के बच्चों में राशन और अद्वियात के साथ साथ गर्म मलबूसात और जूतों की तकसीम कर दी गई। SMT की हमेशा कोशिश रही है कि थैलीसीमिया जैसे मूजी अमराज में खानदानों को हर किस्म की सहूलियात उनकी दहलीज पर मुहैया की जाएं। SMT की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को हम थैलीसीमिया जैसे मूजी अमराज से पाक करें और माशरे के हर शहरी को खुद मुख्तार बनाएं। कैमरामैन जायद के साथ नईमुल्लाह खान, ब्यूरो चीफ, सच TV, हरिपुर। अमरीकी सदर जो बाइडन के मुशीर कल्चर एंड आर्ट शाहिद अहमद खान ने टेक्सला का दौरा किया। इस हवाले से मुश्ताक हुसैन की रिपोर्ट देखिए। अमरीकी और पाकिस्तानी कल्चर को फरोग देने और अवामी सतह पर एक दूसरे से बाहमी रवाबत को फरोग देना मेरे दौरे का मकसद है। आज हुकूमती इक़दामात के बायस पाकिस्तान के हालात इस कदर बेहतर हो चुके हैं कि गैर मुल्की सयाह बिला खौफ और तरद्दुद पाकिस्तान की तारीखी मुकामात देखने और पाकिस्तानी कल्चर को समझने के लिए आजादाना तौर पर आ जा सकते हैं। इन ख्यालात का इजहार अमरीकी सदर जो बाइडन के मुशीर कल्चर शाहिद अहमद खान ने मुकामी मीडिया से इजहार ख्याल करते हुए किया। इस मौके पर जलदार सैयद एहसन रजा ने उन्हें बताया कि टेक्सला दुनिया में वो वाहिद शहर है जिसमें 30 के करीब गंदारा तहजीब और तमद्दन के आसार शहर आबाद थे। उन्होंने मुतालबा किया कि टेक्सला शहर को हिस्टोरिकल सिटी करार दिलवाने में अमरीका अपना अहम किरदार अदा करे ताकि इसके तारीखी मुकामात और गंदारा तहजीब और तमद्दन के आसार और गंदारा आर्ट को महफूज किया जा सके। दुनिया बेहतर होगी, डेमोक्रेसी आएगी, लोग लर्न करेंगे एक दूसरे से, लोग एक दूसरे कल्चर को अप्रिशिएट करेंगे। तो उसकी वजह से उसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट ने एक नया असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट किया फॉर आर्ट एंड कल्चर। इस मौके पर अमरीकी सदर जो बाइडन के मुशीर शाहिद अहमद खान ने टेक्सला म्यूजियम गंदारा आर्ट विलेज टेक्सला का दौरा भी किया। उन्होंने मुकामी हुनरमंदों के काम की बेइंतहा तारीफ की। उन्होंने कहा कि मेरे दौरे का मकसद पाकिस्तानी और अमरीकी अवाम को करीब तर लाकर एक दूसरे के कल्चर को फरोग देना है। मैं अपने दौरे के बाद एक जामे मंसूबा और अपनी सिफारिशात अमरीकी सदर और यूनेस्को के जिम्मेदारान तक पहुंचाकर टेक्सला को हिस्टोरिकल सिटी करार दिलवाने में अपना किरदार अदा करूंगा। सच का पाकिस्तान से अब तक के लिए इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज़।